Good morning everyone and welcome to the class. We are doing Understanding Diversity, the first chapter in civics, and under this chapter we are trying to understand diversity as we have discussed about that story of Sameer Ek and Sameer Do, and through that story it became very much clear to us that there is a difference between inequality and diversity. When there is a difference in the resources and opportunities of the people, this leads to inequality, है ना. जब हमारे resources, हमारे opportunities में differences होते हैं तो इसके कारण inequality आती है. Like we have seen that Sameer Ek used to go to school, but Sameer Do was not in such a condition that he can go to a school. He had never been to a school in his life. So why this difference was there? This difference was because of inequality, because the resources and opportunity available to Sameer Ek was not available to Sameer Do. This is inequality. This does not come under diversity. Diversity means when there is difference in the cultural and religious background. जब लोगों के कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड में डिफरेंस होता है तो उसके कारण डाइवर्सिटी आती है. लाइक Sameer Ek belongs to Sameer Ek belongs to Hindu community and Sameer Do belongs to Muslim community. This is diversity. Sameer Ek is efficient in speaking both the language English as well as Hindi, but Sameer Do is efficient only in speaking Hindi. This is diversity, the linguistic diversity, the cultural diversity, the religious diversity. And we have also discussed how diversity is important for us, because when we have diverse experiences in our life, then we become we become very good in imagination. Okay, if we are having different kind of experience in our life, if we are having diverse experiences in our life, then we will be able to have a very rich imagination power, and this rich imagination power leads to beautiful creations. जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो बुक लिखने वाले राइटर्स होते हैं, उनके बारे में हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन डिस्कस किया था कि अगर उनको एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ पे हर लोग बस रेड एंड व्हाइट दो ही कलर के ड्रेस पहनते हैं, हर लोग सिर्फ और सिर्फ पोटैटो खाते हैं, हर लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से लूडो स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, हर लोग जो है वो दो ही पेट अपने पास रखे हुए हैं. तो इस तरह दो पेट जो है वो सपोज हमने सोचा था कि वो डियर और कैट है जिसको कि वो अपने पास रखते हैं. तो इस तरह के माहौल में अगर कोई स्टोरी टेलर या राइटर रहेगा तो फिर उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत वीक हो जाएगी, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पे, डाइवर्सिटी नहीं है. तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि डाइवर्सिटी जो है वो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर देता है. अदर देन दिस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि हाउ बिकॉज ऑफ diversity we are able to celebrate different festivals of different religion. Not only this, we are also in a condition to enjoy different types of food. We also know different types of languages, है ना. So these are the benefits of living in a diverse society. We have discussed about it, and now we are discussing diversity in India. We know that India is a country where diversity exists, diversity of language, diversity of religion, diversity of culture is there in our country, है ना. So now we are seeing कि ये diversity क्यों है, why we are so diverse, why in India this kind of diversity is existing. इतनी language से related diversity, religion से related diversity, and then culture से related diversity आखिर क्यों है. तो इसमें हमने ये देखा कि जब हम ट्रैवल करते थे पीछे समय में, जबकि कोई भी बहुत अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे सामने अवेलेबल नहीं था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जब हम ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह
तो क्या होता था, तो ट्रैवलिंग वॉज नॉट ईजी, है ना, बहुत मुश्किल होता था ट्रैवल करना। लेकिन और जब ट्रैवल करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो मोस्टली वो वहां पे बहुत लंबे समय तक वहीं रह जाते थे जहां वो पहुंचे। और जब वो नई जगह पर जाते थे तो हमने ये भी देखा था कि किस तरह से इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है। जिस कल्चर को, जो उनका पुराना कल्चर था, जिस प्लेस को वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे, वहां पर उनका जो कल्चर था, उस कल्चर को वो लेकर के नई जगह पर जाते हैं। और जब नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर वो बहुत सारी नई चीजें देखते हैं, कल्चर के न्यू एलिमेंट्स उनको मिलते हैं वहां पर। और तब क्या होता है, उनका पुराना कल्चर और नया कल्चर उनका इंटरमिक्सिंग हो जाता है और इस तरह से एक बिल्कुल ही न्यू कल्चर जनरेट हो जाता है। तो इसी तरह के सिचुएशंस जो हैं वो हमारी कंट्री में भी आए। इसमें हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक बात किया था, यहाँ तक डिस्कस किया था कि किस तरह से जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी डाइवर्सिटी को। जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस से आए हुए जो लोग हैं, ठीक है, बहुत पुराने समय में जो डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए एक जगह पे, तो वो जिस जगह से आए वहां की कल्चरल इन्फ्लुएंस को लिए हुए आए हमारी इंडिया में, है ना। डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए पीछे के बहुत सालों, 100 साल, हजारों साल पहले पीपल केम टू आवर कंट्री विद देयर ओन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, एंड इन सब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ने हमारी लाइफ को शेप किया उस पर्टिकुलर रीजन का जहां पर वो आए। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण डाइवर्सिटी आती है। इसी तरह से जो हमारे सराउंडिंग्स है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी। जैसे अगर हम किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं तो हमारा जो लाइफ होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल हु आर लिविंग इन अ माउंटेनियस रीजन, ठीक है। तो दिस जियोग्राफिकल फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी। ओके, तो हमने ये समझा कि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो है वो हमारी डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस, अगर इंडिया के अंदर ही जो बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, वहां पर हम देखें तो लोगों के कपड़े पहनने के ढंग अलग होते हैं, है ना। their style of clothing is different, their eating habits is different. Not only this, the kind of work they do are also different at different places. वो अलग तरीके से पहनते हैं, अलग तरीके से खाते हैं, अलग तरीके के काम करते हैं, है ना। अगर हम सिटीज को देखें, शहरों को देखें, तो हम क्या देखते हैं कि शहर की लाइफ जो होती है वो अलग तरह की हो जाती है, क्योंकि शहर में क्या होता है कि हमारे सबकी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। कोई ना कोई हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। जो कुछ भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम मार्केट से अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं एजुकेशन के लिए। तो सिटीज़ की लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। कहीं भी जो भी सिटीज़ की लाइफ है वो उसमें बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होता है, क्योंकि हमारा जो फिजिकल सराउंडिंग्स है सिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है हमारे लाइफ पे। लेकिन यही अगर हम गांव में देखते हैं तो वहाँ पर जो उनका फिजिकल सराउंडिंग है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। शहर में आप कभी भी नहीं देखिएगा कि बहुत रेयरली, आजकल तो ये ट्रेंड भी हो रहा है, किचन गार्डन लोग अपना बनाते हैं, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता है कि उनको अगर सब्जी खानी है तो वो उसके लिए अपनी वो सब्जी खुद की ग्रो करे, है ना। इट हैपन्स वेरी रेयरली, बहुत कम ही लोग इस तरह के काम करते हैं बट कम लोग करते हैं, है ना। क्या हम करते हैं, हम मार्केट जाते हैं और अपने जो भी वेजिटेबल या जो भी हमारे नीड्स हैं वो सारे हमारी मार्केट से ही पूरी हो जाती है ना। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे एरियाज को देखें खास करके जो जिन पर फिजिकल सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है, तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि क्यों हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है। और इसको समझने के लिए हम लोग दो रीज़न के बीच
दो रीजन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एक लद्दाख है एंड दूसरा जो है वो है केरल। ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड दीज टू प्लेसेस क्योंकि ये दो प्लेसेस जो है यहाँ पर की जो लाइफ है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और डिफरेंट होने के पीछे क्या रीजन है? रीजन है दोनों के जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं। लद्दाख में जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं और जो केरल की जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस भी जो इन दोनों रीजन्स पे है वो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस भी अलग अलग तरह की है। और इसलिए इन दोनों जगह की हम अगर देखें तो लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। तो हम लोग इसी को इन दोनों जगह के हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब डाइवर्सिटी क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैप देखना होगा कि मैप में लद्दाख कहाँ पर है और केरल कहाँ पर है। लद्दाख जो है वो इंडिया के नॉर्थ में है। आज के समय में लद्दाख जो है वो एक यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी, है ना। तो ये इंडिया के ऊपर नॉर्थ में है। जिस साइड चाइना है उस साइड वाला जो पोर्शन है नॉर्थ का वो लद्दाख है। ठीक है, और केरल कहाँ है? केरल जो है वो नीचे में है, जिसको हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेट है केरल, वो है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख जो है वो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में है और ईस्ट साइड में है। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था, अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। और साथ ही लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है। ठीक है, बट जो लद्दाख जो है वो डेजर्ट जो है इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अब इसको हम डेजर्ट क्यों कहते हैं और इसको हम कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? इसको डेजर्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा? रेनफॉल अगर नहीं हो रही है तो वो ड्राई रीजन होगा, और ड्राई रीजन होगा तो फिर क्या होगा? वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नॉट पॉसिबल, है ना। बहुत बहुत कम एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि ड्राई रीजन है। एंड दिस इज इस कारण से हम इसको डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डेजर्ट है यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है इट इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। साल के जो ज्यादातर समय होते हैं उस समय ये स्नो से कवर्ड रहता है। ठीक है, और स्नो से कवर्ड रहता है, इसीलिए इसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में जो थार डेजर्ट है दैट इज हॉट डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट होने का मतलब कि ड्राई रीजन होना, बारिश नहीं होना, बारिश नहीं होने के कारण ग्रीनरी नहीं होना। ठीक है, दिस इज डेजर्ट, दीज आर द फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट। सेम यही चीज हम देखते हैं जैसे राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहां भी ऐसे ही है ना। वहां बारिश बहुत कम होती है जिसके कारण वो ड्राई रीजन है, और वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती है, ग्रीनरी नहीं होती है, बहुत कम ट्री जो होते हैं वो दिखते हैं, है ना। और वहां पर भी हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम है थार डेजर्ट में। तो दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट जहां भी होगा, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, ये सारी फीचर्स वहां पे रहेंगी, है ना। और अगर लद्दाख में भी हम देखें तो यहाँ पे भी पानी की कमी है, ड्रिंकिंग वाटर में लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं होती है। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। जब समर मंथ में स्नो मेल्ट करता है तो उसी मेल्टेड स्नो पर वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ डेजर्ट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डेजर्ट। लेकिन इसको हम कोल्ड डेजर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेत नहीं है। जैसे थार का जो डेजर्ट है वहां पर क्या सैंड है ना। ओवरऑल हमें सैंड दिखता है, बट ये कोल्ड डेजर्ट है इसलिए यहाँ पर हमको ओवरऑल जो अर्थ है
वो स्नो से कवर्ड होता है। ज्यादातर साल के ज्यादातर मंथ्स तक में ये स्नो से कवर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर की जो आपको जियोग्राफिकल फीचर है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, और ये माउंटेनियस भी है, यहाँ पर माउंटेन्स भी है। ठीक है, दिस इज माउंटेनियस रीजन, दिस इज अ डेजर्ट, दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट। ओके, एंड नाउ वी विल सी कि पीपल, लोगों का लाइफ यहाँ पर कैसा है, हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, यहाँ पर लोग जो हैं वो शीप और गोट रखते हैं। पीपल कीप शीप एंड गोट। यहाँ की जो गोट्स है वो बहुत ही स्पेशल है। वाई द गोट्स ऑफ लद्दाख आर इम्पॉर्टेंट, आर स्पेशल? दे आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ वुल विच इज कॉल्ड पश्मीना। These goats produce पश्मीना वुल। अब ये पश्मीना जो है वो बहुत ही, पश्मीना वुल से पश्मीना शॉल बनता है। ठीक है, दिस वुल इज यूज्ड टू वीव दैट शॉल विच इज कॉल्ड पश्मीना शॉल। और ये जो पश्मीना शॉल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत ज्यादा गर्मी देता है। ठंड के दिनों में जब अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो पश्मीना शॉल आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत गर्मी देता है। तो ये जो वूल है इससे पश्मीना शॉल बनता है, और जो पश्मीना शॉल बनते हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत कॉस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर इस रीजन में जो लोग हैं वो उनका प्राइम जो फंक्शन है वो इसी प्राइम जो उनकी लाइवलीहुड जो है वो इसी गोट पर डिपेंडेंट होती है। वो गोट पालते हैं, गोट्स के से जो ऊन निकलती है वो पश्मीना वूल होती है, उससे पश्मीना शॉल बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, और ये जो इनके पास तो सिर्फ वूल होता है, शॉल ये नहीं बनाते। ठीक है, ये सिर्फ वूल इनके पास होता है। जो ट्रेडर्स आते हैं कश्मीर से, उन ट्रेडर्स को ये पश्मीना वूल सेल कर देते हैं। फिर वो ट्रेडर्स जो है वो कश्मीर में उस वूल को ले जाकर वीवर्स से शॉल वीव कराते हैं। तो वूल जो है वो लद्दाख में प्रोड्यूस होता है। ट्रेडर्स लद्दाख से ले जाते हैं कश्मीर, इनको अच्छे पैसे देते हैं, खरीदते हैं उनसे, और फिर उसको कश्मीर ले जाते हैं जहां पर जो वीवर्स होते हैं वो उससे शॉल वीव करते हैं। ठीक है, अब ये जो शॉल बनता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो इनकी लाइफ जो है ये इसी गोट पर डिपेंड करती। ठीक है, so for livelihood they are totally dependent on these pashmina wool. And now we see the people of Ladakh, what do they eat? They eat meat and milk products. Okay, they eat meat and milk प्रोडक्ट्स। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज है, बटर है, इस तरह से वो लोग इन चीजों को खाते हैं क्योंकि वो शीप और गोट को रेयर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली शीप और गोट से उनको मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, और मिल्क से वो तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर फैमिली जो है उसके पास गोट होती है, काऊ होती है, याक काउस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ काउ जिसको वहां पर हम लोग याक काउ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हर फैमिली जो है इन एनिमल्स को केयरिंग करती है। ठीक है, और जो लद्दाख रीजन है वो डेजर्ट है, इसलिए किसी तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है इस लद्दाख रीजन को एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है। क्यों ट्रेड रूट अच्छा माना जाता है? क्योंकि इसमें लद्दाख के पास बहुत सारे पासेस हैं। पासेस क्या होता है? जब हम जैसे माउंटेनियस रीजन है, उनके बीच में जो पतली सी, जिसको हम गली कह सकते हैं, जिससे हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, उसी को हम पास कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ये जो माउंटेन्स हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज कोई माउंटेन के इस तरफ रहता है और उसे माउंटेन के उस तरफ जाना है, तो कैसे जाना होगा? उसे पूरा का पूरा इधर से घूम करके, अगर वो यहाँ पे रहता है तो उसे यहाँ से ऐसे घूम के इधर पहुँचना होगा, है ना। लेकिन जब पासेस होते हैं ना, तो पासेस का मतलब क्या है? ये बीच में एक पतली सी रास्ता, पतली गली है, ठीक है। माउंटेन्स के बीच में पतली गली है, जिससे होकर के लोग चाहें तो इधर से उधर जा सकते हैं, है ना। जो इतना घूम के जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, रिसोर्सेज लगते, परेशानी होती, वो कैसे हो गया? ये पासेस के थ्रू लोग सीधे चले गए। पतली गली होती है, तो जो नैरो पैसेज होते हैं बिटवीन द माउंटेन्स, उसी को हम पासेस कहते हैं। तो जो हमारा जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, लद्दाख रीजन की, ये यहाँ पर बहुत सारे पासेस हैं, और ये जो पासेस है ना, ये ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को क्या है, हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है। दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इफ there is no passes, if there are no passes, then they have to travel like this, है ना। इतना पूरा घूम के आना पड़ेगा। लेकिन अगर पासेस उनको है वहाँ पे अवेलेबल, तो उधर से इधर आना या इधर से उधर जाना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि लद्दाख को बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज पासेस। ठीक है। और इसी कारण से जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता था पीछे जमाने से। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली भी यहाँ पर ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा आना जाना होता था, ठीक है। जैसे ट्रेडर्स जो है वो कारवान्स में चलते हैं, एक ग्रुप में चलते हैं, अपने साथ ग्रुप लेकर चलते हैं, जिसको हम कारवान्स कहते हैं। तो यहाँ से लोग क्रॉस करके, जो अगर लद्दाख के पीछे का जो रीजन है वो देखेंगे, वो कौन सा है? तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत जो है वो हालांकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना जाता था, बट अब चाइना ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो तिब्बत जो है वो लद्दाख का नेबर है, और इन पासेस के थ्रू तिब्बत तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है, या तिब्बत से लद्दाख इन पासेस के थ्रू आसानी से आया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो पासेस हैं, इनसे कारवांस जो हैं, जो ट्रेडर्स के कारवांस होते हैं, वो ट्रैवल करके तिब्बत पहुंचते थे, तिब्बत से लोग यहाँ आते थे। और ये जो यहाँ से जो कारवांस जा रहे हैं ट्रेडर्स का, वो अपने साथ क्या कैरी करते थे? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स, ये सारी चीजें यहाँ से लेकर वो तिब्बत जाते थे। What were the objects which the caravans used to carry with them? Textiles, spices, raw silk and carpets.
ठीक है, ये सब कुछ लेके वो आना जाना करते थे। और इस कारण से हम क्या देखते हैं कि तिब्बत और लद्दाख के बीच में बहुत ज़्यादा, जिसको कहेंगे, एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। जैसे कि लद्दाख में आज की डेट में हम देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। लद्दाख में बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडर्स का आना जाना होता था, कारवान्स का आना जाना होता था, उन्हीं के थ्रू क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म जो लद्दाख में था वो कहाँ पहुँच जाता, वो तिब्बत पहुँच जाता है। ठीक है, बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। वाया लद्दाख मतलब लद्दाख होते हुए ये बुद्धिज़्म तिब्बत पहुँचता है। और इसलिए लद्दाख, जैसे लद्दाख और तिब्बत के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो इतना ज़्यादा आना जाना है, दोनों जगह के कल्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि लद्दाख में जो मेन सबसे ज्यादा जिस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म के अलावा एक और रिलीजन यहाँ पर पॉपुलर है और वो है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम जो है वो इस रीजन में 400 इयर्स अगो आया था। ठीक है, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, जैसे बुद्धिस्ट भी रहते हैं और मुस्लिम्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है वो क्यों है, क्योंकि वो भी हिस्टोरिकली उसके पीछे रीजंस है। ठीक है, लद्दाख का जो ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स है, जैसे ओरली जो गाना गाना, किसी तरह का पोएम्स को रिसाइट करना, ये सब चीज़ें वहाँ का बहुत ही रिच है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो तिब्बत का जो नेशनल एपिक है, तिब्बत के नेशनल एपिक का नाम है केसर साजा। तो उस नेशनल एपिक का लोकल वर्जन यहाँ पर गाया जाता है तिब्बत में, लद्दाख में। लद्दाख में तिब्बत का नेशनल एपिक जिसका नाम है केसर साजा, उसको गाया जाता है। उस पर परफॉर्मेंस भी होता है, जैसे रामलीला पर होता है ना परफॉर्मेंस दशहरा के टाइम में इंडिया में, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, वैसे ही लद्दाख में जो तिब्बत का एपिक है केसर साजा, उस पर परफॉर्मेंस होता है। इसलिए इसको लिटिल तिब्बत कहते हैं। जो कल्चरल सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, दैट इज वाई लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ठीक है, और ये जो केसर साजा में जो एपिक है, जो पोएम है, उसको मुस्लिम्स भी गाते हैं और बुद्धिस्ट भी गाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि लद्दाख में जो रिलीजन है, रिलीजन की डाइवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है और तिब्बत से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है। तिब्बत का जो नेशनल एपिक है, these are important for 1 mark questions, है ना। नेशनल एपिक ऑफ तिब्बत, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल एपिक ऑफ तिब्बत? इट्स केसर साजा। It is its local version is performed in Ladakh and its song is sung by both Muslims and Buddhists. Okay, तो this is all about Ladakh। ये हमने लद्दाख के बारे में समझा, जाना। लद्दाख में लोगों की क्या लाइवलीहुड, कैसे वो अर्न करते हैं, लोग क्या खाते हैं, है ना, वहाँ की रिलीजन क्या है, वहाँ कैसे तिब्बत से वो इतना क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा। और अब हम लोग पढ़ेंगे केरल के बारे में। ठीक है,
केरल के बारे में भी हम लोग इसी तरह से देखेंगे कि वहाँ पर क्या उसका जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, और वहाँ पर लोगों के क्या लाइवलीहुड के लिए वो लोग क्या करते हैं, कैसे हिस्टोरिकली वो डिफरेंट जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ आते थे और उनका किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।